فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال اللہ تبارک وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم او کما قال اللہ تبارک وتعالی۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو یہ قربانی کا دن عطا فرمایا۔ آج ہم اور آپ تمام لوگ اللہ کے مہمان ہیں اور آج اللہ میزبان ہے، اور قربانی کے دن انسان کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوتا۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ نے ہم کو قربانی کا دن عطا فرمایا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہیں، قربانی کا خون بھی بہاتے ہیں، جانوروں کا خون بھی بہاتے ہیں، اور اپنے وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہم کوئی بڑے جانور خریدتے ہیں، کوئی چھوٹا جانور خریدتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ کے راستے ہم قربان کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم بہاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ہم یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی ہم اور آپ کیوں دیتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، قربانی کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میرے بھائی، جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں، بارہا آپ یہ واقعہ سنے ہوں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ تاریخ ساز واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے آپ کو کوئی اولاد نہیں دیا تھا، لیکن 80 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہو گئے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ تو مجھے ایک اولاد دے دے۔ ہمیں ایک میسج ملتا ہے، ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو اللہ سے مانگنے چاہیے، اللہ دیتا ہے نا، اللہ سے مانگنے سے اللہ دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہمیں مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے ایک اولاد دیا، اس کا نام رکھا اسماعیل۔ اللہ ایک اولاد نہیں تھا، ایک اولاد دیا۔ اولاد دینے کے بعد اللہ آپ کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، اللہ کو آزماتے رہے، امتحان لیتے رہے، اور ہر طرح سے آزماتے رہے، امتحان لیتے گئے، اور اللہ کا جو جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے، اور اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی شکل میں بیٹا دیا، خوبصورت جیسا، پھول جیسا بیٹا۔ اللہ نے کہا ابراہیم پھر تم امتحان کی تیاری شروع ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ حکم ہوتا ہے کہ میری راہ میں، اللہ کی راہ میں تمہارے سامنے جو محبوب چیز ہے اس کو تم قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جانور کو قربانی کرتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ جو تمہارے نظر میں سب سے محبوب ہو اس سے قربان کر دو۔ سمجھ لیا کہ آج بیٹے کی قربانی مانگا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، عجیب منظر تھا۔ بیٹے کو بلایا جاتا اور کہتا ہے بیٹا کہ میں، اللہ کا حکم ہوا ہے، میں تجھے راہ خدا میں قربان کرتا ہوں۔ کیا اولاد تھی بھائی، نبی کا بیٹا تو اثر تو ہوگا نا، کیا خوبی تھی۔ باپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے ابو جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، رہا میرا مسئلہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ کیا باپ تھے بھائی، کیا بیٹا تھا۔ باپ سوال کرتے ہیں، بیٹا جواب دیتے ہیں، بیٹے کے جواب کو سن کر کے باپ بالکل خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا چل۔ امی سے بولتا ہے نہلاؤ دلاؤ، لے کے جاتے ہیں، لے کے جاتا ہے، شیطان آتا ہے، اے حاجرہ بیٹا کا اسماعیل؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کو باپ لے گیا گھمانے کے لیے۔ نہیں لے گیا، وہ تو قربان کرنے لے گیا، ذبح کرنے لے گیا۔ کیسی بات کر رہے ہو، شیطان کو تو بھٹکانا تھا نا، ہم شیطان کے بھٹکاؤ میں آ جاتے ہیں۔ وہ آیا بھٹکانے کے لیے، لیکن کیا ہوا کہ نبی کی بیوی تھی نا حضرہ، کہا کہ سنو، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پہ میرے شوہر خاص اپنے پیارے بیٹے کو اگر قربان کرنے کے لیے لے گیا تو میں بھی اس پہ تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاضرہ نے یہ جواب دیا، شیطان بھاگا، اور بھاگتے ہوا کہا گیا اس کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وہ بھی بہکانا چاہا، نہیں بہکا پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کنکر اٹھا کے مارتے ہیں۔ وہ کنکر مارنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا نا، آج بھی حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کنکر اٹھا کے مارتے ہیں شیطان کو۔ میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں مقام مینا پہ، لیٹاتے ہیں، اور لیٹانے کے بعد باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار، آسمان زمین بالکل خاموش ہے، چرندے پرندے بالکل اڑنا اور چہچہانا بند کر دیا۔ عجیب منظر تھا، عجیب سما تھا کہ اللہ دنیا کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک باپ بیٹے کو آج ذبح کرنے جا رہا ہے، اللہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے کان لگا ہوا بیٹا وہاں پہ دیکھ رہا، اللہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے دنیا کے اندر۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، عجیب منظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام
ने अपने बेटे को जमीन के ऊपर लेटाया और कहा कि अब्बू जान आप अपने छुरी को चलाइए। आप छुरी को चलाते हैं, कहते अब्बू जान रुक जा, अगर मैं चेहरे को ऊपर करता हूं और आपका चेहरा मेरे चेहरे पे पड़ेगा और आप छुरी मेरे गले पे चलाएंगे तो अब्बा रहम आएगा आपको। तो एक काम कीजिए अब्बू जान, हमको ना मेरे चेहरे को नीचे कर दीजिए जमीन के बल और यहाँ पे मेरी छुरी चलाइए, और दूसरा काम अब्बा ये कर लीजिए ना, अपने आंख में पट्टी बांध लीजिए। एक तो काम और कर लीजिए अब्बा, रस्सी से ना मेरे हाथ पैर को बांध दीजिए। क्या मंजर था भाई, अब्बा मेरे हाथ पैर को रस्सी से बांध दीजिए। क्यों बेटा? अब्बा जब मैं कटूंगा जबे होऊंगा ना तो खून निकलेगा ना, दर्द रूह निकलेगा ना, तकलीफ होगी ना, तो मैं तड़पूंगा, आप मुझको देखेंगे और खून बहता हुआ देखेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा अब्बा। तो एक काम कीजिए ना, अपने आंखों पट्टी बांध दीजिए, हाथों और पैर पे आप ये लगा लीजिए, क्या कहते हैं, रस्सी बांध दीजिए। उसने ऐसे किया, छुरी चलाते हैं, छुरी नहीं चलती भाई, अल्लाह का ये हुक्म होता है, छुरी को अल्लाह ने हुक्म देता है कि छुरी तो इस्माइल का एक बाल भी आज बेका नहीं कर सकता, उसको गले को जर्रा बराबर खराश तक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का ऐसे हुक्म होता है, इधर से बाप हुक्म जोर देते हैं, उधर से बेटे का जोर होती है, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है छुरी नहीं चलती है। मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जन्नती मेढे को वहाँ पे रख दिया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के गले पे आग पे पट्टी लगा के छुरी चलाते हैं और कुछ देर बाद उनको ये एहसास होता है कि सही माने में मैंने कुर्बानी कर दिया। जब आग से पट्टी उन्होंने खोली, क्या देखा कि वो जन्नती मेढा वहाँ पे ज़बह किया हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं पे खड़े हैं। नौजवान मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला को आपके खून बहाना मकसद नहीं था, लेकिन असल मकसद ये था कि हम देखते हैं, आजमाते हैं, परखते हैं कि हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कितना पूरा उतरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमेशा आजमाते हैं और ये कुर्बानी से हमें एक मैसेज मिलता है, ये पैगाम मिलता है कि हम कभी भी अपने दिल के अंदर हम दुनिया को गालिब होने न दें, हम हमेशा आखिरत को गालिब होने दें। कभी भी कोई चीज़ आए अल्लाह के रास्ते में, अगर हमें ये कुर्बानी से मैसेज ये मिलता है कि हम अल्लाह की राह में अगर जान खर्च करना पड़े जान खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना पड़े माल खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त खर्चा करना पड़े वक्त खर्चा करेंगे, अल्लाह के रास्ते में तन मन धन की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने इस्लाम को पीछे हटने कभी नहीं देंगे। ये हमें कुर्बानी से मैसेज मिलता है, कुर्बानी से हमें पैगाम मिलता है। इंशाअल्लाह मरते दम तक हम ये जो हुक्म मिला है सुन्नत इब्राहिमी को हमारा जिंदा रखेंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नत इब्राहिमी को अच्छी तरीके से जिंदा कायम और दायम रखने की तौफीक नसीब फरमाए। और यह कुर्बानी का सीजन चल रहा है, मौका चल रहा है और आप और हम और आप तमाम लोग देश के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ है। हम और आप कभी भी इस कुर्बानी की वजह से हमारे जो हिंदू भाई है, हमारे दूसरे भाई है, उनको जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे हम महुआ के अंदर हो या कहीं भी हो, जहां कहीं भी हम कुर्बानी देते हो। खुदा के वास्ते अदब के साथ कहता हूं, कुर्बानी के जानवर के जो फजलात है, जो हड्डी वगैरह है और जो बाकी चीज है, खून वगैरह है, इधर उधर आप न छोड़े। हम देखते हैं लापरवाही होती है हम लोगों से, यहाँ वह छोड़ देते हैं, हम अंदर है इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इस अमल से, हमारी इस हरकत से हमारे जो बिरादर वतन है उनको तकलीफ होती है। बिल्कुल तकलीफ होनी चाहिए, हो सकती है, इसलिए हम जो जानवर का फजलात है, हड्डी वगैरह, सींग वगैरह और जो दीगर चीज जो हम इस्तेमाल में नहीं आता है, उसको गड़ा खोद के हम और आप अच्छी तरह से दफन कर दे। ठीक है, इसको इधर उधर न छोड़े। दूसरी बात, अभी नदी में पानी है, कई सालों में मैंने ये चीज भी देखा कि जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको भुट्टी वगैरह हम लोग नदी में बहा देते। गलत बात है भाई, गलत बात है। इससे पहले भी देखा गया नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारे एक अमल से हम क्यों करते हैं कुर्बानी? गोश्त खाने के लिए नहीं, हम कुर्बानी करते हैं नेक काम करने के लिए। उस नेक काम करेंगे फिर दूसरे को हम तकलीफ देंगे, सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हमको अगर नहीं खाना है, नहीं यूज में लाना है, उसको गड़ा खोते दफन कर दिया, क्या दिक्कत है? बच्चों को बोलिए नदी में यहाँ मत फेंकिए, तालाब में यहाँ मत फेंकिए, खुली जगहों में यहाँ मत फेंकिए, बस तकलीफ उठा करके गड़ा खोद करके उसको दफन कर दीजिए। दूसरी बात यह है, हम लोग जो कुर्बानी करते हैं ना, तो अक्सर मैंने नौजवानों को देखा ज़बह करते वक्त थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं ना, ज़बह करते वक्त हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़बह करते वक्त हमारे मिजाज ठंडे ये होनी चाहिए कि ज़्यादातर ज़बह करते गिराए और गिराने के बाद लेट नहीं करना चाहिए, ताखिर नहीं करना चाहिए। जो मुस्टंडा टाइप का लोग है उसको एक्टिव रहना चाहिए। जो लोग खुद से ज़बह करना सकते हैं, खुद से ज़बह कीजिए, बेहतर अफजल ये है खुद से ज़बह कीजिए, वरना तो अगर दोस्तों से ज़बह करवाते हैं आप खुद वहां पे हाजिर रहिए, बेहतर है, अफजल है। दूसरी बात यह है कि ज़बह करते वक्त हम लोग एक जानवर को ज़बह करते हैं, दूसरे जानवर को वहां पे रेडी रखते हैं। नहीं भाई, ऐसा मत कीजिए, गुनाह भाई, उसकी भी एक जान है,
उनके में जिस समय रूह है, ऐसा मत कीजिए। उस जानवर को ज़बह करते हैं दूसरे जानवर को दूर में रखिए, फिर लाके गिरा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जानवर को ज़बह करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि नए लोग जो ज़बह करते हैं ना, ज़बह करते करते बहुत दूर तक पहुंचते नहीं। देखिए जानवर को जब ज़बह करते हैं तो 4 रग है या 3 रग है, 3 रगों को काट दीजिए, काट उसको छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, काटते करते चले जाते हैं गुद्दी तक, हमको मना है। 4 रग जो है ना, एक रग है गजा वाली जिसमें पुआल वगैरह खाना वगैरह जाता है, वो रग वो है। एक है सांस वाली नली और 2 है खून वाली नली। 2 में से एक अगर कट भी जाए, यानी 3 रग या 4 रग हर हाल में कट जाना चाहिए, कट के उसे छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते मालूम है, अभी ज़बह हुआ है और उधर हम लोग जानवर तरफ ही आप नस करना शुरू कर दिया, गलत बात भाई। इससे पहले भी मना किया था, कुछ देर में छोड़ दिए, 10 मिनट में छोड़ दिया ना भाई, जब तक चाय पी लीजिए, क्या दिक्कत है। जानवर के रूह है, उसको तकलीफ है, इतनी दूर जल्दी रूह नहीं निकलती है। दूसरी बात यह है, जब जानवर भूल गया हम, जब जानवर को ज़बह हो जाती है, ज़बह करने के बाद कुछ देर के उसको छोड़ दीजिए। एक मसला भी अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को कुर्बानी के अमल को बेहतरीन से पेश करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो मुख्तसर में कुर्बानी का जो तरीका है आपको बता के मैं बैठ जाता हूँ। देखिए इमाम साहब जो हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग को नियत कर ले। देखिए अरबी में नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, उर्दू में आते हैं ना, अपनी भाषा में आता है ना, कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ, है ना, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ठीक है ना। उस तरह से नियत कर लीजिए। नियत करने के बाद हम लोग सना पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जो नमाजें पढ़ते हैं उसी को पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 मरतबा अल्लाह अकबर, जो इमाम साहब कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर 23 मरतबा हम लोग हाथ बांध लेना है। इमाम साहब रुको, जैसे और नमाजों में सिर्फ फातिहा और वगैरह पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, फिर रुको सजदा करेंगे, रुको सजदा से उठने के बाद इमाम साहब किरात करेंगे। किरात करने के बाद इस पे ध्यान दीजिएगा, किरात करने के बाद 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे, ठीक है ना। 4 मरतबा में से 3 मरतबा हाथ उठा करके नीचे छोड़ देना है और 4थी मरतबा हाथ उठाए बगैर रुको में चले जाना है। फिर नमाज इमाम साहब जिस तरह नमाज पूरी करते हैं उस तरह से नमाज पूरी करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।